circuit design. So starting with the lecture number 1 of unit number 3. So in this lecture we are going to study about the basic introduction of the 555 timer, then the internal functional diagram of 555 timer, and one of the type of 555 timer IC, that is monostable multivibrator circuit. So that much part we are going to cover in today's lecture. My voice is clear, na? Yes, sir. Okay, thank you. So basic introduction of 555 timer. So as per the generation of 555 timer, it is generated by Signetic Corporation in the year of 1970. So first 555 timer IC built in the year of 1970 by the Signetic Corporation. So this is the inventor of the 555 timer IC, and on that time the original name of the 555 timer IC was SC555 oblique NE555. So that was the name of the initial design 555 timer IC, that is SC555 and NE555, and on that time it was called as the IC time machine. The IC time machine. So what is the basic difference in SC555 and NE555? So that is based on the range of the temperature of these 555 timer IC. So the difference in between SC555 and NE555 is that SC555 can work for a temperature range of minus 55 degree to plus 125 degrees. So this is the range in which SC555 timer IC can be used, while NE555 IC can operate over a temperature range of 0 degree to plus 70 degree. So this is the basic difference in SC and NE555 timer IC. So that is completely based on the range of the temperature includes by these 555 timer IC. So SC555 range of the SC555 is minus 55 to plus 125, whereas in case of the NE555 the temperature range includes 0 degree to plus 70 degrees. So it can't be used for the negative temperature range. Whenever we talk about the NE555, we can't use it as for a negative temperature range, but SC555 IC can be used for a negative as well as positive temperature range supply. Okay. Now why it's called as the 555 timer IC? So 555 timer IC gets its name from, as for the designing of 555 timer IC we are using three 5 kilo ohm resistor. तो जब भी हम लोग इसका डिजाइन करेंगे आप लोग देखिएगा इंटरनल फंक्शनल डायग्राम में जब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो इंटरनली 555 IC is to be designed with the help of 3 different 5 kilo ohm resistance. इसके पीछे कोई लॉजिकल और कुछ रीजन नहीं है कि 555 टाइमर IC को इस वजह से नाम दिया गया, ऐसा कुछ कहीं रिटन नहीं है, बट इन जनरल हर कोई 555 टाइमर को किससे कंपेयर करता है कि अगर इंटरनल फंक्शनल डायग्राम में जाएं हम तो 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के 3 रजिस्टर आपके कनेक्टेड होते हैं. तो इन जनरल सबने कहना स्टार्ट कर दिया कि 555 टाइमर वहां से है, बट थ्योरेटिकली कहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है. ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है. बट फिर भी इसको हम लोग ले सकते हैं कि इंटरनली 5 किलो ओम रेजिस्टेंस, 3 डिफरेंट 5 किलो ओम रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कॉल्ड एज द 555 टाइमर. ठीक है. It is widely used because of its easy to use, low price and reliability. So this is the advantage of 555 टाइमर IC. अगर इसके डिजाइनिंग की बात किया जाए इंटरनल सर्किटरी के 555 टाइमर में, तो क्या क्या इंक्लूड रहता है इसके डिजाइनिंग में? सो इट इंक्लूड्स 23 ट्रांजिस्टर्स, 2 डायोड and 16 registers on a single silicon chip in an 8-pin mini dual inline package. तो अगर हम लोग DIP 8-pin DIP की बात करें तो वहां पे इंटरनली इन द डिजाइन ऑफ 555 IC क्या क्या रहता है? 23 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, 2 numbers of diode
and 16 numbers of register. इसके थ्रू आपका एक 555 टाइमर आईसी डिजाइन होता है। ठीक है, तो द 555 टाइमर is a monolithic timing circuit that can produce accurate and highly stable time delay or oscillation. क्या क्या? Accurate and high stable time delay, ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है आपका टाइम डिले, एंड सेकेंड वन इज oscillation that depends on the types of the 555 timer IC. So whenever we go with monostable 555 timer, so with the help of that we may generate the time delay, but whenever we go with astable 555 timer, then with the help of that we may generate the oscillation. ठीक है, तो ये दोनों चीज आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज हमने देखा यहाँ पे? सबसे फर्स्ट कब आपका डिजाइन हुआ 555 टाइमर? इन द ईयर ऑफ 1970। किसने डिजाइन किया? सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन में। क्या नेम था इसका ओरिजिनल? SC 555 और NE 555, और इसको क्या बोलते थे स्टार्टिंग में? IC टाइम मशीन। ठीक है, SC और NE 555 क्यों बोल रहे थे वहां पे? क्योंकि इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस था। क्या क्या डिफरेंस था? अगर SC 555 की बात करें तो ये नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव टेम्परेचर के एप्लीकेबल है। इसका टेम्परेचर रेंज -55 टू +125 है। NE 555 की बात करें तो इसका टेम्परेचर रेंज कहां से कहां तक है? 0 टू +70 डिग्री। तो सिर्फ पॉजिटिव टेम्परेचर रेंज के लिए ये एप्लीकेबल था। 555 टाइमर हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटरनल सर्किटरी में 3-5 किलो ओम के रजिस्टर्स यूज होते हैं, इसलिए इन जनरल सबने क्या कहना स्टार्ट कर दिया कि 555 टाइमर का नाम वहां से है, बट ऐसा रिटर्न कहीं पर नहीं है कि इसी वजह से इसको 555 टाइमर आईसी हम लोग कहते हैं। अगर डिजाइनिंग की बात करें तो इस सर्किट में 8 DIP 8 पिन आईसी पैकेज के लिए 23 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 डायोड्स होते हैं और 16 रजिस्टर डिजाइनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। कहाँ क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है आपका 555 टाइमर? टाइम डिले प्रोड्यूस कर सकता है और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। टाइम डिले इन केस ऑफ मोनोस्टेबल एंड ऑसिलेशन इन केस ऑफ हाई स्टेबल। तो दिस इज द सब थ्योरेटिकल और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ 555 timer IC. Now, as I told you, the timer IC can be used in 2 different modes. क्या क्या मोड्स हैं आपके? मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक और मोड होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जब यूनिट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मल्टी वाइब्रेटर, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एक्चुअली द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। बट हियर ओनली वी आर going to study about the monostable and astable 555 timer. ठीक है, monostable is also called as the one shot multi vibrator and astable is also called as the free running multi vibrator. ठीक है, so in case of the monostable mode क्या कर सकता है ये? It produces the time delay. जैसे मैं आपको बताया, अगर टाइम डिले की बात करें तो टाइम डिले के लिए हम लोग को किस मोड पे ऑपरेट करना पड़ेगा सर्किट को? मोनोस्टेबल मोड में। But whenever we go with the oscillations, rectangular wave, then on that condition we need to use the astable 555 timer. So astable mode में ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है? Rectangular wave with a variable duty cycle. That means you are free to change the shape of the signal waveform. ठीक है, तो frequently the 555 timer is used in astable mode to generate the continuous series of pulses. So whenever you want to generate the continuous series of pulses, then on that condition you need to use the 555 timer in astable mode. But you can also use the 555 timer to make a one shot or monostable circuit. So that depends on your requirement. आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या जनरेट करना है। टाइम डिले अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर सर्किट में तो मोनोस्टेबल मोड में ऑपरेट करिए 555 टाइमर को। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ पल्सेस चाहिए then you need to use the 555 timer in astable mode. ठीक है, इन कंडीशन में आप यूज करेंगे। आगे 555 टाइमर की हम लोग बात करें, सो 555 टाइमर कैन सोर्स और सिंक 200 milliampere of the output current. So this is the range of the 555 timer of sourcing and sinking of output current. So that is 200 milliampere and is capable of driving wide has a temperature stability of 50 ppm per degree centigrade change in temperature. ठीक है, तो 50 ppm और 0.005% per degree centigrade temperature stability
ये देता है। अगर सोर्स और सिंक करंट की बात करें, आउटपुट करंट की, तो ये कितना है आपका 200 मिली एम्पियर। ठीक है। अगर एप्लीकेशन में हम लोग जाएं 555 टाइमर के, तो जैसे मैं आपको बताया एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन योर मोड्स। तो इन केस ऑफ द मोनोस्टेबल मोड, what are the different application where we may use the 555 timer? So first main application in case of the timers, in case of the missing pulse detector, bounce free switches, touch switches, frequency division, capacitance measurement and pulse width modulation. So इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताना चाहूँ, अगर किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में आपको टाइम डिले चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में अगर आपको डिले प्रोवाइड करना है, देन यू हैव टू यूज द 555 टाइमर एंड इन मोनोस्टेबल मोड, क्योंकि मोनोस्टेबल मोड आपको क्या देता है, टाइम डिले। ठीक है। तो कोई भी सर्किट हो, टाइम डिले अगर आपको चाहिए वहां पे, तो 555 टाइमर मोनोस्टेबल मोड में आप यूज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। एंड द एप्लीकेशन इन केस ऑफ द अनस्टेबल और फ्री रनिंग मोड इंक्लूड्स एज अ ऑसिलेशन और पल्स जनरेशन। तो एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, एलईडी और लैम्प फ्लैशर। एक्चुअल में क्या होता है, एलईडी आपको कुछ टाइम के लिए ग्लो होगा, कुछ टाइम के लिए ऑफ, फिर ग्लो फिर ऑफ। तो ये किसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रनिंग पल्सेस, क्योंकि रनिंग पल्सेस में आपका पॉजिटिव saturation रहता है, नेगेटिव सैचुरेशन रहता है। इन केस ऑफ द नेगेटिव एलईडी विल बी ऑफ, इन केस ऑफ द पॉजिटिव सैचुरेशन एलईडी विल बी ऑन। इन केस ऑफ द लॉजिक क्लॉक्स, सिक्योरिटी अलार्म, pulse generation, tone generation and pulse position modulation. So these are some application of 555 timer in astable mode. Bistable की अगर बात करें, तो 555 timer can operate as a flip flop and is used to make bounce free latch switches. Whenever we use the bistable 555 timer in bistable mode, but आपको यहाँ पर ये चीज डिस्कस करना नहीं। ठीक है। फिर भी एक इन जनरल आइडिया के लिए मैं आपको यहाँ पे बस इस चीज को मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे, वाई और वेयर वी में यूज द बाइस्टेबल 555 टाइमर। तो किस टाइप से ऑपरेट होता है ये, एज अ फ्लिप फ्लॉप हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। सो मेनली यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन मोनोस्टेबल 555 टाइमर एंड अस्टेबल 555 टाइमर। सप्लाई रेंज की अगर हम लोग बात करें इसके, तो द 555 टाइमर कैन बी यूज्ड with a supply voltage in a range of 4.5 volt to 15 volt and at max 18 volt. ठीक है। So this is the range of the supply in which we may use the 555 timer IC, 4.5 to 15 volt. In general, in the laboratory, we will use the 12 volt of the supply. ठीक? Now starting with basic pin construction and functional diagram of 555 टाइमर। ठीक है। तो यहां भी आपको देखिएगा, मोस्टली वी आर यूजिंग द 8 पिन DIP पैकेज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द 555 टाइमर और फॉर वर्किंग विद द 555 टाइमर IC। सो दिस इज द पिन कनेक्शन ऑफ 555 टाइमर। क्या क्या पिन है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पिन इज ग्राउंड, सेकेंड इज ट्रिगर, थर्ड वन इज आउटपुट, फोर्थ इज रीसेट, fifth is control voltage, sixth is threshold, seventh is discharge and eighth is VCC। आपको ये पिन ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आपके इसी पे बेस्ड हैं, तो आपको पूरे पिन याद रहने चाहिए। कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, G T O R C T D V। तो GTOR CTDV, so these are the pins of 555 timer। जैसे G आपका क्या है, ground, T for trigger, O for output, R for reset, C for control voltage, T for threshold, D for discharge and V for positive VCC supply। So GTOR CTDV, by which you may remember the different pins of 555 टाइमर। क्या क्या यूज है हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा और देखें हम लोग पिन कनेक्शन को। तो
पिन नंबर 1 इज ग्राउंड, किस टाइप का है, आउटपुट आपका पिन है, क्या देता है ये, ग्राउंड रेफरेंस वोल्टेज। तो 555 टाइमर को हम लोग ग्राउंड किस पिन के थ्रू देते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिन नंबर 1। ठीक, सो रेफरेंस वोल्टेज इज टू बी प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ पिन नंबर 1। पिन नंबर 2 इज फॉर ट्रिगरिंग, किस टाइप का, इनपुट प्रोवाइड करना है आपको, इन ट्रिगर पल्स हम लोग इनपुट में देते हैं, एंड it is responsible for transition of SR flip flop. Mostly trigger pulse is used in case of the monostable 555 timer, क्योंकि monostable 555 जो है, एक्चुअली मोनोस्टेबल में एक आपका होता है क्वासी स्टेबल स्टेट और दूसरा होता है स्टेबल स्टेट। तो जब भी आपको टाइमर को क्या करना रहता है, टू शिफ्ट फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू क्वासी स्टेबल स्टेट, on that condition you need to apply some trigger pulse. So that trigger pulse is to be given with the help of pin number 2। ठीक, तो हम लोग ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं टाइमर में, इसलिए ये आपका क्या है, इनपुट पिन है, इस पिन पे, पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 3 इज यूज फॉर द आउटपुट पिन है आपका, एंड इट ड्राइव्स द लोड, ठीक है, और द आउटपुट वेवफॉर्म। पिन नंबर 4 इज फॉर रिसेट, किस टाइप का, इनपुट सर्किटरी को आपको रिसेट करना है, इनिशियल कंडीशन में लेके आना है, उसके लिए आपका पिन नंबर 4 है। कैसे करते हैं, अ नेगेटिव पल्स ऑन रिसेट विल डिसेबल और रिसेट द टाइमर। तो जब भी आपका इनपुट में सिग्नल आपका नेगेटिव रहेगा, लेस देन 1/3 ऑफ वीसीसी, ये हम लोग देखेंगे 1/3 ऑफ वीसीसी क्या है, तो उसके बाद आपका सिग्नल कहां हो जाएगा, रिसेट कंडीशन। पिन नंबर 5 इज टू गिव द कंट्रोल वोल्टेज, तो कंट्रोल सिग्नल आपको अप्लाई करना है सर्किट में, दैट्स व्हाई इट इज अ इनपुट पिन। क्या कंट्रोल करता है, विड्थ ऑफ द पल्स, क्या कंट्रोल करेगा, विड्थ ऑफ द पल्स। कैसे, तो इंटरनली यहाँ पे 2 वोल्टेजेस कनेक्ट होते हैं, वन इज 1/3 ऑफ वीसीसी एंड सेकंड वन इज 2/3 ऑफ वीसीसी। तो बाय चेकिंग these voltages we are using to apply control signal। ठीक है, तो क्या करता है, कंट्रोल द विड्थ ऑफ द आउटपुट पल्स by controlling the threshold and trigger level। तो ये जो इंटरनल वोल्टेज है उसको चेंज करने के लिए हम लोग कंट्रोल वोल्टेज का काम यूज करते हैं। पिन नंबर 6 इज फॉर थ्रेशोल्ड, किस टाइप का पिन है, इट्स एन इनपुट पिन एंड इट कंपेयर्स द वोल्टेज अप्लाइड एट द टर्मिनल विथ रेफरेंस टू 2/3 वीसीसी। तो हर जगह ये 2/3 और 1/3 आएंगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फंक्शन डायग्राम। पिन नंबर 7 इज यूज्ड फॉर द डिस्चार्ज, किस टाइप का, इनपुट पिन है, कहां कनेक्ट रहता है, एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर फॉर मेकिंग इट शॉर्ट सर्किटेड व्हेनेवर वी वांट टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। एंड पिन नंबर 8 इज टू गिव द सप्लाई वोल्टेज इज एन इनपुट एंड इट्स अ सप्लाई वोल्टेज। सो दीज आर द 8 डिफरेंट पिन्स ऑफ 555 टाइमर। ठीक, आई होप दैट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So now moving towards the functional diagram of 555 timer. So it's a internal connection of 555 timer। इंटरनल आपको ध्यान है तो आपको इसके थ्रू मोनोस्टेबल भी आप डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए अस्टेबल भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मोनोस्टेबल के केस में, अस्टेबल के केस में ये सर्किट सेम है, सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, टाइमिंग कंपोनेंट्स। सिर्फ क्या चेंज होंगे, टाइमिंग कंपोनेंट्स विल बी चेंज। टाइमिंग कंपोनेंट कहाँ लगते हैं, एट द इनपुट टर्मिनल। ये जो आपका पोर्शन है ना, यहाँ पे हम लोग टाइमिंग कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हैं। टाइमिंग कंपोनेंट्स एक्चुअल में कुछ नहीं है, रजिस्टर और कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो वहीं से आपका पल्स का विड्थ कंट्रोल होता है, आउटपुट पल्स का वेव। ठीक, so starting with functional diagram of 555 timer। so internally connected क्या है, तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के लिए, तो देखिए ये आपका 5 किलो ओम, 5 किलो ओम एंड 5 किलो ओम। so these are 3 different 5 kilo ohm resistance which is to be connected at the input terminal of the 555 timer internally। that's why it is called as the 555 timer। जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि 555 टाइमर क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक रीजन था बहुत लोगों के यूज करने का कि 555 टाइमर में हम लोग 5 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस है।
सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, these are the comparators. So two comparators are used here. Input to the comparator कहाँ कहाँ अप्लाई है? So in case of the lower comparator or comparator number 2, inverting terminal is connected to trigger pulse. Inverting terminal को आपको कहाँ कनेक्ट करना है? ट्रिगर पल्स, या इसके थ्रू हमको ट्रिगर पल्स देना है. And positive terminal is connected to in between 5 kilo ohm resistance, and these 5 kilo ohm resistances are used to provide the fixed supply voltage. 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस हम लोग क्यों अप्लाई किया? यहाँ पे फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है. ठीक है, फर्स्ट हम लोग को क्या मिलता है? लेट सपोज हियर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 10. फर्स्ट 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के आपके ड्रॉप होगा. ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है? दैट इज 2/3 ऑफ VCC. ठीक है, तो 66% आपको यहाँ पे मिला. ठीक, अगेन देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस, तो वन पार्ट और यहाँ पे आपका डाउन हो गया. ठीक, तो अगर मैं क्लियरली इसको 9 बोलूँ, 99, 10 में अगर क्लियर नहीं हो आपको, 99 अगर हम लोग बोलते हैं, तो फर्स्ट 33 आपका यहाँ पे डाउन हो गया 5 किलो ओम के अप्रॉक्स, तो आपको कितना मिला? 66. सेकेंड 33 कहाँ डाउन हो गया? अक्रॉस दिस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ कितना मिला? 33. फिर थर्ड 33 कहाँ डाउन हो गया इस 5 किलो ओम के अक्रॉस, तो यहाँ पे कितना मिला? 0. ठीक, तो these 5 kilo ohm resistances is to produce the fixed supply voltage at inverting and non-inverting terminal of the comparator, which is basically used for comparison. तो हम लोग देखेंगे कैसे कंपैरिजन करते हैं. बस ये आप ध्यान रखिए कि इसको इक्वल डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और इक्वल डिवीजन एक्चुअल में है कितना? इक्वल डिवीजन एक्चुअल में है कितना? अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट जो अपर कंपैरेटर है, अपर कंपैरेटर में दैट इज 2/3 ऑफ VCC. ठीक, अपर कंपैरेटर के यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में कितना? 2/3 ऑफ VCC, और लोअर टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल में कितना मिलता है? 1/3 ऑफ VCC. So these are the fixed voltage which is being applied at the input terminals of comparator number 1 and comparator number 2. ये आपको ध्यान रखना है, ये वोल्टेज फिक्स है. ठीक, सेकेंड, आउटपुट टर्मिनल ऑफ दी बोथ दी कंपैरेटर्स आर कनेक्टेड टू SR फ्लिप फ्लॉप. किससे कनेक्ट रहता है? SR फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट रहता है. ठीक, SR फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर क्या है? व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल एट सेट नंबर पिन इज हाई, आउटपुट विल बी हाई. यस, सेट पिन की वैल्यू को फॉलो कौन करता है? आपका SR फ्लिप फ्लॉप. तो इफ द वैल्यू इज 1, output will be 1. If the value of set pin is 0, output will be 0. So always you will get either the S is equal to 1 or S is equal to 0. ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान किस पे रखना है? सेट पिन में कितनी वैल्यू है. या तो रीसेट पिन की वैल्यू 0 होगी, तो आपका रीसेट Q बार इज इक्वल टू 0, 1. ठीक है, तो इट्स अ फ्लिप फ्लॉप. देखते हैं आगे ऑपरेशन में. फिर उसके बाद आउटपुट टर्मिनल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप और Q टर्मिनल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर. ये किसको क्या बोलते हैं? QD, D फॉर डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं? फॉर डिस्चार्जिंग पर्पज. ये एक्चुअल में कहाँ कनेक्टेड रहता है? यहाँ पे इनपुट टर्मिनल में. ठीक, आगे कनेक्शन देखेंगे हम लोग. एंड Q बार, with the help of this terminal we are calculating the load. या तो पल्स विड्थ आपको कहाँ जनरेट होगी? across this pin number 3, and this pin number 4 is used for resetting the circuit. So these are the different components which is internally connected in 555 timer IC. क्या क्या है? कंपैरेटर है, 2 numbers of comparator, 1 number of flip flop, 1 number of transistor, and 3 different 5 kilo ohm resistance. ठीक, मोनोस्टेबल और स्टेबल में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, यहां तक जो बेसिक देखिए, उसमें किसी को डाउट है क्या? यहां तक एनी डाउट? ये डिफरेंट पिन्स हैं अब यहाँ पे, तो पिन को आप लोग अपने से देख लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है.
जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग डिस्कस भी किए। पिन नंबर 1 इज फॉर ग्राउंड, ठीक है, ऑल वोल्टेजेस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू this pin number 1 terminal. Pin number 2 is used for giving the trigger pulse. बेसिकली किसी कंडीशन में यूज करते हैं ट्रिगर पल्स इन केस ऑफ द मोनो स्टेबल 555 टाइमर। ठीक, आई स्टेबल में ट्रिगर पल्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 2 को। ठीक है, तो आई स्टेबल में कोई यूज नहीं है पिन नंबर 2 का, बट इन केस ऑफ द मोनो स्टेबल 555 टाइमर वी विल कनेक्ट इट विद द ट्रिगर इनपुट पल्स। So external trigger pulse we apply with the help of this pin. The output of timer is low if the voltage at this pin is greater than 2/3 of VCC. ठीक है, and if a negative going pulse of amplitude larger than 1/3 of VCC applied to this particular pin, output will be low. ये सब theoretical जब मैं वहां समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा, तो इसको आप लोग बस ऐसे ही देख लीजिए ऊपर ऊपर, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे। पिन नंबर 3 में आउटपुट हम लोग ले रहे हैं, किस टाइप का आउटपुट हो सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आउटपुट से रिलेटेड। इफ पिन नंबर 3 और प्लस वीसीसी इनके बीच में अगर हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पिन नंबर 3 से आपको क्या कनेक्ट करना है, लोड या आउटपुट। तो अगर जो आपका लोड है, या लोड की जगह मान लीजिए आपका एलईडी के अक्रॉस ले रहे हैं आउटपुट, तो अगर उसका एक टर्मिनल पिन नंबर 3 पे है, सेकेंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई, इस कंडीशन में भी वो लोड है, वहां पे आपको आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर एक पिन नंबर 3 पे है, दूसरा टर्मिनल उसका सप्लाई वोल्टेज पे है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली ऑन लोड। ठीक, कई जगह आपको ये चीज वर्ड आएगा, नॉर्मली ऑन लोड। तो नॉर्मली ऑन से आप समझ जाइए कि आपका लोड कहाँ कनेक्टेड है, इन पिन बिटवीन पिन नंबर 3 एंड पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। बट इफ load is connected in between pin number 3 and second terminal is grounded, then that is called as the normally off load. ठीक, तो एक होता है normally on load and second one is normally off load. Pin number 4 is used to give the reset pulse to the timer, so it is being used to reset the circuit. Pin number 5 is to give the control voltage. तो कंट्रोल वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पिन नंबर 5 में सिग्नल पल्स अप्लाई करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सिग्नल इंटरनल 2/3 वीसीसी विल बी चेंज। तो जैसे जैसे वीसीसी चेंज होगा, आपका चार्जिंग टाइम कैपेसिटर का बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और उसी के हिसाब से आउटपुट पल्स की विड्थ भी चेंज हो जाएगी। ठीक, सो एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू दिस टर्मिनल टू चेंज द थ्रेशोल्ड एज वेल एज द ट्रिगर वोल्टेज। द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म इज हेंस डिपेंड ऑन इट। अगर आपको यूज नहीं करना है कंट्रोल वोल्टेज, पल्स विड्थ आपकी फिक्स है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो जब आपका यूज में नहीं है, देन कंट्रोल पिन शुड बी बाईपास टू ग्राउंड विथ 0.1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर टू प्रिवेंट एनी नॉइस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, वाई पिन नंबर 5 इज टू कनेक्टेड विथ 0.01 माइक्रोफैरड कैपेसिटर टू ग्राउंड, क्या यूज है उसका, तो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, टू प्रिवेंट एनी नॉइस प्रॉब्लम। तो नॉइस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए, नॉइस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पिन नंबर 5 है उसको विद द हेल्प ऑफ 0.01 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। देन पिन नंबर 6 इज फॉर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्डिंग लिमिट और चार्जिंग लिमिट ऑफ द कैपेसिटर इसके थ्रू डिसाइड होता है। कहाँ पे है ये, this is the non-inverting input terminal of comparator number 1. ठीक है, so when the voltage at this pin is more than 2/3 of VCC, the output of this comparator becomes high, and which in turn switches the output of the timer will be low. तो कैपेसिटर जैसे ही चार्जिंग को क्रॉस कर जाएगा उस पर्टिकुलर लिमिट को, आउटपुट विल बी लो। सो ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड। पिन नंबर 7 इज टू गिव द डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर आपका कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए पिन नंबर 7 का यूज करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, इट इज टू बी कनेक्टेड इंटरनली टू द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जैसे ही आपका सैचुरेशन कंडीशन में आएगा, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड व्हेन द आउटपुट ऑफ दिस टाइमर इज हाई, Q1 इज ऑफ। तो ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब सर्किट देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगा। और सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो +5 टू +18 वोल्ट इतना सप्लाई आप दे सकते हैं। अगर फिक्स की बात करें तो +4.5 टू 15 इतना हम लोग यूज करते हैं, इतना कर सकते हैं।
मैक्सिमम कितना है +18 वोल्ट, अभी हमने देखा इसमें, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट पिंस ऑफ 555 टाइमर। वो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ IC 555। अब स्टार्ट करते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहां से अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे ना 1/3 VCC, 2/3 VCC, तो ये सब चीजें अब यहां से आपको क्लियर होगी मैं एक्चुअल में क्या बात कर रहा था, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं मोनो स्टेबल 555 टाइमर, वन ऑफ द टाइप ऑफ 555 टाइमर IC, ठीक। जैसा हमने डिस्कस किया मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है एक्चुअल में, पल्स जनरेटिंग सर्किट है हैविंग वन स्टेबल स्टेट एंड वन क्वासी स्टेबल स्टेट। तो मोनो स्टेबल में क्या होता है, हर जितने भी आपके मल्टी वाइब्रेटर हैं सब में 2 स्टेट्स होते हैं। in each multivibrator there are 2 states. When we talk about the monostable multivibrator, there is one stable state and one quasi-stable state. If we talk about the astable 555 timer, there both the states are quasi-stable state. If we talk about the bistable multivibrator, where both the states are stable states. So this is the difference in between monostable, astable and bistable 555 timer. So here it is monostable multivibrator. That's why one state is stable state and second one is quasi-stable state. So since there is only one stable state, this circuit is also known as monostable multivibrator. So why it's called as the monostable? Why? Because there is only single stable state. That's why its name is monostable multivibrator. The duration of the output pulse is determined by the RC network, which is also called as the timing components, connected externally to the 555 timer. कहाँ पे connect होता है? It is connected externally to the 555 timer. The stable state output is approximately 0 or at logic low level. ठीक है? So in stable state, the output is fixed, but whenever we want to transit or whenever we want to give the time period to particular circuit, we need to apply the trigger pulse. On that condition, the circuit will switch from stable state to quasi-stable state for that particular time period. And after the completion of that time period, the circuit will remain or switch back to its stable state. ठीक है, तो यहाँ पे 2 stable state है, फर्स्ट 1 स्टेबल स्टेट है और सेकंड आपको क्वासी स्टेबल स्टेट है। कैसे काम करता है, मान के चलिए आपको 5 सेकंड का डिले देना है सर्किट में, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन का, 5 सेकंड का। जैसे ही आपने ट्रिगर पल्स दिया, आपका क्या हो गया, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्टेबल स्टेट से कहाँ चला गया, क्वासी स्टेबल स्टेट। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा आपका, आप फिर से कहाँ रिटर्न बैक हो जाएंगे, स्टेबल स्टेट। अगर एग्जाम्पल वाइज हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो आपका घर है, आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप घर में आराम से बैठे हुए हैं, बट अगर आपको कुछ काम पड़ता है शॉप में, तो आप क्या करते हैं, उस काम को कंप्लीट करने के लिए शॉप तक जाते हैं। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ, फिर कहाँ जाते हैं, आप घर पे रिटर्न बैक हो जाते हैं। तो घर आपका स्टेबल स्टेट था, वो शॉप आपका क्या है, शॉप तक जाना और आना एक्चुअल में आपका क्या है, ट्रांजिशन पीरियड या क्वासी स्टेबल स्टेट का पीरियड। तो आपका फिक्स स्टेट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आपके उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब तक आपका काम नहीं होता है। कि जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक आप शॉप में रहेंगे, वहां तक जाएंगे और आएंगे, बट फाइनली आपको आना कहाँ पे, घर में। वैसे ही मोनो स्टेबल के केस में है, स्टेबल स्टेट इसका फिक्स्ड स्टेट है। जैसे ही आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिले, किसी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए टाइम डिले देना रहता है, हम लोग ट्रिगर पल्स दिए, उसको एक काम पकड़ा दिए, तो गया उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक काम को कंप्लीट किया उसने। जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, जैसे ही वो डिले कंप्लीट हो गया, फिर से कहाँ रिटर्न बैक हो जाते हैं, स्टेबल स्टेट में। सो दिस इज द पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ मोनो स्टेबल 555 टाइम। एन एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स फोर्सेस द आउटपुट टू बिकम हाई और अप्रोक्सीमेटली, तो जो मैं चीज बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। इन ईच टाइम अ ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड, द सर्किट प्रोड्यूसेस अ सिंगल पल्स, ठीक है। जैसे ही आपको कुछ काम पड़ा, आप किए और आ गए, तो हर टाइम जैसे ही कोई पर्टिकुलर टास्क आपको मिला, आप उसको सिंगल पल्स में कंप्लीट करके आते हैं। तो वैसे ही मोनो स्टेबल में जैसे ही आपने ट्रिगर पल्स दिया, एक सिंगल पल्स आपकी जनरेट होगी और वो फिर कहाँ से रिटर्न हो जाएगी, 0th पोजीशन में। इस वजह से इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर।
तो दिस इज द अनदर नेम ऑफ मोनोस्टेबल 555 टाइमर। क्या चीज? वन शॉट, हर एक ट्रिगर पल्स के लिए सिंगल पल्स जनरेट होती है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर। ठीक, नाउ द फंक्शनल डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। ठीक, तब इसका ऑपरेशन देखते हैं, मोनोस्टेबल कैसे काम करता है। तो जैसे मैं आपको बताया, ये जो कंपोनेंट थे यहां से लेके ये पूरा यहां वाला, दिस इज द इंटरनल फंक्शनल डायग्राम ऑफ 555 टाइमर जो मैंने पहले लिखा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा कंपोनेंट सेम है, वही आपका सिंगल ट्रांजिस्टर, 35 किलो ओम के रेजिस्टेंस, 2 नंबर्स ऑफ कंपरेटर, 1 SR फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, एंड सप्लाई वोल्टेज। एडिशनल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? 1 रेजिस्टेंस एंड 1 कैपेसिटेंस। ठीक, तो किसी भी टाइमर की बात करें हम लोग, इंटरनली ये सर्किट हर जगह सेम होगा, आपका ऐसे ही कनेक्ट होगा, सिर्फ चेंजेस कहां पे होंगे? इन रजिस्टर और कैपेसिटर में। इन केस ऑफ मोनोस्टेबल 555 टाइमर, सिंगल रेजिस्टेंस एंड सिंगल कैपेसिटर इज यूज्ड। अगर हम लोग बात करें मोनोस्टेबल का, तो सिंगल रेजिस्टेंस एंड सिंगल कैपेसिटेंस विल बी यूज्ड फॉर द डिजाइन पर्पस। बट इन केस ऑफ द अनस्टेबल, in case of the unstable 555 timer, 2 numbers of resistance and 1 capacitance is used। तो यहां पर आपका देखिए क्या है, पिन नंबर 6 and 7 is शॉर्ट सर्किटेड विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इस केस में मोनोस्टेबल में तो एक आपका सप्लाई वोल्टेज से 7 में हमेशा कनेक्ट रहेगा। ये रजिस्टर का यूज एक्चुअल में क्या है? टू प्रोटेक्ट दिस ट्रांजिस्टर फ्रॉम एक्सेसिव करंट। ठीक है, तो एक्सेसिव करंट से ट्रांजिस्टर को सेफ करने के लिए आपका ये रजिस्टर यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो कंप्लीट करंट कहाँ चली जाएगी? इधर। ठीक, और ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रजिस्टर या इन केस ऑफ द अनस्टेबल 555 टाइमर, 1 मोर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन बिटवीन पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 6। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन मोनोस्टेबल एंड अनस्टेबल सर्किट कनेक्शन। मोनोस्टेबल में सिर्फ क्या है? सिंगल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। In case of the unstable, 1 more resistance is connected in between pin number 7 and 6. ठीक, so this is the basic difference in circuit connection। ठीक है, तो unstable को बाद में देखते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो सर्किट कनेक्शन में जैसे बताया, मोनोस्टेबल में क्या है? 1 रेजिस्टेंस which is connected in between pin number 8 and 7 and 1 capacitor which is connected in between pin number 6 and ground। ठीक, ये सर्किट कनेक्शन है। क्या होता है यहाँ पे सर्किट कनेक्शन में? तो ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना है? 1/3 VCC। पहले ही हमने डिस्कस किया था इसको कि इंटरनली कितना वोल्टेज जनरेट होता है एट द पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ लोअर कंपरेटर, 1/3 ऑफ VCC। यहाँ पे कितना फिक्स जनरेट होता है? 2/3 ऑफ VCC। तो दीज आर द फिक्स वोल्टेज जनरेटेड एट द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स ऑफ द कंपरेटर। 2/3 VCC कैसे है? इसमें कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था ना 99, तो फर्स्ट 5 किलो के ओम के अप्रॉक्स कितना डिवाइड हो गया? 33, तो कितना बचा? 66, मतलब 2/3। फिर यहाँ पे कितना और ड्रॉप हो गया? 33, तो कितना बचा? 33, मतलब 1/3। यहाँ पे फिर 33 ड्रॉप हो गया, तो कितना बचा? 0। ठीक है, तो अपर कंपरेटर के नेगेटिव टर्मिनल में 2/3 VCC एंड लोअर कंपरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में कितना मिलता है? 1/3 VCC। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, 33 ऐसा नहीं होता। जो वोल्टेज है उसके डिवीजन के बाद यहाँ पे कितना मिलेगा? 2/3 पार्ट, और यहाँ पे कितना मिलेगा उसका? 1/3 पार्ट। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे क्या है आपका? पिन नंबर 2 इज टू बी गिव द ट्रिगर पल्स, पिन नंबर 5 इज कनेक्टेड टू 2/3 VCC। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं ऑपरेशन। इनिशियली व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज 0, जब कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। तो क्या है? कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो हियर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट। कितना वोल्टेज? 0 वोल्ट। जैसे ही 0 हुआ,
जैसे ही 0 हुआ यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये देखिए 6 नंबर टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अपर लेवल कंपरेटर। तो यहाँ वोल्टेज कितना मिला 0। निगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज कितना है 2/3 ऑफ VCC। कंपरेटर का बेसिक वर्क क्या है, कई बार हमने देख चुके हैं इस चीज को। इफ द नेगेटिव टर्मिनल voltage is higher as compared to positive terminal, output will be at minus saturation, and if positive terminal voltage is higher, output will be at positive saturation। ऐसा मिलता है ना कंपैरेटर का आउटपुट, positive terminal is higher as compared to negative terminal, output will be high। if negative terminal is higher as compared to positive terminal, output will be low। ठीक है, तो निगेटिव में ज्यादा है तो लो, पॉजिटिव टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज है तो हाई आउटपुट मिलता है। ये बेसिक ऑपरेशन है कंपैरेटर सर्किट का। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एट नेगेटिव टर्मिनल द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 2/3 ऑफ VCC, एट पॉजिटिव टर्मिनल आउटपुट इज 0 वोल्ट, दैट मीन्स आउटपुट विल बी व्हाट, आउटपुट विल बी लो। लो दैट मीन्स 0। ठीक है, यहाँ पे लो और हाई से क्या मतलब है, हाई विल बी 1 एंड लो विल बी 0। ठीक, so output is low। so at set pin the value is 0। when set is 0, Q will be 0। जैसी सेट हुआ Q 0 हो गया। when Q is 0, base voltage of the transistor is 0, that means transistor will be in cut off condition। तो पिन नंबर 7 से ट्रांजिस्टर का कोई कनेक्शन नहीं, दैट मीन्स इट विल बी ओपन सर्किट। क्या हो गया, ट्रांजिस्टर ओपन सर्किटेड। व्हेन ट्रांजिस्टर इज ओपन सर्किटेड, with the help of the supply voltage current will flow। let's suppose the value of that current is I। तो ये करंट यहाँ से रजिस्टर R से होते हुए ये पाथ आपका क्या हो गया ओपन सर्किट, तो करंट कहाँ आ गई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर इसके बाद क्या है आपका, दिस इज द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर या कंपरेटर का। और हम लोग पहले ही जानते हैं इनपुट इंपेडेंस ऑफ द कंपरेटर और इनपुट इंपेडेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी हाई। in ideal condition it's infinite। so in this particular direction the value of current I1 is equal to 0। तो यहाँ पे करंट क्या हो गई 0। तो जितनी भी करंट आ रही थी वो अब कहाँ फ्लो हो गई, अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट करंट नाउ द कैपेसिटर इज चार्ज। ठीक, उसकी वजह से आपका कैपेसिटर अब क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक, कब तक चार्ज होगा, जैसे जैसे चार्जिंग वोल्टेज बढ़ेगा। ये किससे कनेक्टेड है चार्जिंग वोल्टेज, दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पिन ऑफ द अपर कंपरेटर। किससे कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पिन ऑफ अपर करंट। तो शुरू में वोल्टेज 0 था, अब बढ़ते बढ़ते कितना वोल्टेज हो गया, चार्ज हो रहा है ना विद द हेल्प ऑफ करंट। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा एक कंडीशन आएगी, हियर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी मोर देन 2/3 ऑफ VCC। कितना चार्ज हो गया अप टू कैपेसिटर, मोर देन 2/3 ऑफ VCC। तो जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज कितना हुआ, मोर देन 2/3 ऑफ VCC, आउटपुट विल बी नाउ हाई। अपर कंपरेटर का आउटपुट क्या हो जाता है, हाई। हाई दैट मीन्स 1। हाई कितना हो गया 1। सो एस पिन विल बी 1, तो क्यू भी क्या आपका क्या हो गया 1, एंड क्यू बार विल बी 0। तो अभी तक आउटपुट आपको हाई मिल रहा था, अब आउटपुट आपको क्या मिला 0। तो जैसे ही Q की वैल्यू 1 हुई, नाउ द ट्रांजिस्टर विल मूव इनटू सैचुरेशन कंडीशन। ट्रांजिस्टर किसमें मूव हो गया, सैचुरेशन कंडीशन में। व्हेन इट इज इन सैचुरेशन कंडीशन, दिस कलेक्टर टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू पिन नंबर 7। कलेक्टर टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया, पिन नंबर 7 से। नाउ द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड कैपेसिटर विल डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनल। और कैपेसिटर क्या होना है, डिस्चार्ज। तो देखिए क्या था यहाँ पे, शुरू में वोल्टेज कितना था 0, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है ना VC, ये आपका VC वोल्टेज। व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज इज 0 इनिशियली, फिर उसके बाद जैसे ही आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, इट इज चार्जिंग एक्सपोनेंशियली। कैपेसिटर इज चार्जिंग एक्सपोनेंशियली। कब तक, अप टू 2/3 ऑफ VCC। ये वाला लिमिट कितना है 2/3 ऑफ VCC, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में फिक्स वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है 2/3 ऑफ VCC। जब पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज जो कि क्या है कैपेसिटर का वोल्टेज है,
that is more than this 2/3 of VCC, on that condition set pin will be 1. कंपैरेटर का अपर पोर्शन में हाई मिल रहा है ना पॉजिटिव में, तो व्हेन आउटपुट इज 1 सेट पिन विल बी 1. जैसे ही सेट 1 हुआ द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 1. Q के 1 होने से ट्रांजिस्टर विल मूव इनटू सैचुरेशन कंडीशन. व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन कंडीशन, collector terminal will be connected to pin number 7. Now the capacitor will discharge with the help of this capacitor. और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये डायरेक्टली आपका क्या है, शॉर्ट सर्किटेड. तो इंस्टेंटली दिस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज एट 0th टाइम. ठीक है, उसके बाद आउटपुट आपका क्या हो जाता है, 0. नेक्स्ट पल्स के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिगर पल्स देंगे. अगेन वी विल गिव द ट्रिगर पल्स. तो जब ट्रिगर पल्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पॉजिटिव में, प्लस VCC आपको मिल रहा है, मतलब रीसेट पिन आपको इनिशियली क्या है, 1. ठीक है, तो इस टाइप से पल्स विड्थ जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. ये आउटपुट कैसे है, व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग ऑन दैट कंडीशन. जब यहाँ पे कितना था, 0 था, तो Q बार कितना मिल रहा था आपको, 1. क्योंकि जब ये 0 होगा तभी ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किटेड है ना, और जब ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किट है उसी कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज होगा. तो व्हेन Q पिन विल बी 0, Q बार इज इक्वल टू 1. तो Q बार 1 मतलब ये आपका 3 नंबर पिन पे, ये आपका आउटपुट पिन पे. ये जो वेव फॉर्म मिल रहा है रेक्टेंगुलर पल्स एट पिन नंबर 3 आउटपुट. जब आपका Q 0 है, Q बार इज 1. जैसे ही आपका Q 1 हुआ, Q बार इज 0. एक आपको पल्स जनरेट हो जाती है, सिंगल पल्स. तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर. एनी डाउट इस ऑपरेशन में, किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट होगा तो फिर से मैं बता दूंगा, जल्दी से बताइए. एनी डाउट इन द ऑपरेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर? वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं. ठीक है, जिनको उसके बाद भी समझ में नहीं आया हो, यहाँ पे मैंने थ्योरी उसका मेंशन कर दिया है. ठीक, इस थ्योरी को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो चीजें और क्लियर होंगी. फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे से कभी भी आप लोग इस चीज को पूछ सकते हैं कि कैसे ऑपरेट हो रहा है. जो ऑफलाइन लेक्चर में आएंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक, दिस इज द थ्योरी ऑफ मोनोस्टेबल 555 टाइमर. एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बच जाती है यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर पल्स विड्थ. जो हम लोग बात किए थे ना, इस पल्स की, ये इस पल्स की विड्थ कितनी है, ऑन टाइम कितना है, यहीं से हम लोग क्या मिलता है, टाइम डिले. एक्चुअली ये पल्स क्या है, डिले ऑफ द पल्स है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं. देखिए छोटा सा कैलकुलेशन है. एक्चुअल में ये पल्स विड्थ किसके थ्रू जनरेट हो रही है, बाय द चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर. ठीक है ना, पल्स विड्थ कब जनरेट हुई, जब ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. जब इनिशियल पोजीशन पे आपका कैपेसिटर वोल्टेज है, पल्स विड्थ आपकी हाई है. कब तक हाई है, जब तक ये फाइनल पोजीशन तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता. जैसे ही फाइनल पोजीशन को अचीव किया, आपका पल्स विड्थ क्या हो गई, लो हो गई. ठीक, दैट मीन्स दिस पल्स विड्थ डिपेंड्स ऑन द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. जो कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसके थ्रू स्टार्ट करते हैं, बाय द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं. So the voltage across the capacitor is given as Vc is equal to VCC 1 minus e to the power minus t by tau, where tau is time constant of the circuit. टाइम कांस्टेंट मैं पहले ही बताया. आगे देखिए, इंडक्टर है, कैपेसिटर है. अगर कैपेसिटर है तो टाइम कांस्टेंट आपका क्या होगा, RC, वेयर C इज चार्जिंग कैपेसिटेंस, और R क्या होगा, जिसके थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाए, जिस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू आपकी करंट आ रही है. ये करंट आपकी किधर से आ रही है, विद द हेल्प ऑफ सप्लाई टू दिस रेजिस्टेंस एंड देन कैपेसिटर इज चार्जिंग. तो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट क्या है जिसके थ्रू आपका करंट पास हो रहा है, दैट इज R. तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये RC. ठीक है, तो 0 पोजीशन में तो ठीक है. फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, कैपिटल T. तो व्हेन T इज इक्वल टू कैपिटल T, कैपेसिटर में वोल्टेज कितना है, VC. This is the final voltage, ना. So this final voltage is how much?
2/3 ऑफ VCC। हमने देखा यहाँ पे 5 नंबर टर्मिनल पे कितना वोल्टेज जनरेट होता है, 2/3 ऑफ VCC। ठीक, तो जब कैपेसिटर वोल्टेज कितना हो गया, मोर देन 2/3 ऑफ VCC, ओनली ऑन दैट कंडीशन आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि Q इज इक्वल टू 1। जैसे ही Q आपका 1 हुआ, ट्रांजिस्टर विल बी इन सैचुरेशन कंडीशन। जैसे ही सैचुरेशन हुआ, इट विल बी कनेक्टेड टू पिन नंबर 7, और जैसे ही यहाँ कनेक्ट हुआ, नाउ द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ठीक, तो फाइनल वोल्टेज कितना है कैपेसिटर का, 2/3 ऑफ VCC, जहां तक कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाता है। इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन में। तो VC is equal to 2/3 of VCC, that is equal to VCC 1 minus e to the power minus capital T by RC. From there VCC and VCC cancelled out. सॉल्व करिए इसको, फाइनल वैल्यू ऑफ T कितना मिल जाएगा, RC log 1/3 और 1.1 RC. So this is the pulse width of monostable 555 टाइमर। तो मोनोस्टेबल 555 टाइमर की पल्स विड्थ आपको कितनी मिली, 1.1 RC। तो क्वेश्चन में आपको कई बार आर दिया रहेगा, सी अपने से एज्यूम कर लीजिए, टी आपका क्या है, पल्स विड्थ। कई बार ये भी लिखा रहेगा, जनरेट अ मोनोस्टेबल 555 टाइमर फॉर अ पल्स विड्थ ऑफ 2 सेकेंड्स, फॉर अ पल्स विड्थ ऑफ 2 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू आपको क्या रखनी है वहां पे, 2। एंड फ्रॉम देयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, नहीं दिया। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन ऑफ pulse width in case of monostable 555 timer। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके लिए, in a monostable multivibrator using 555 timer the value of RA is given। RA कितना दिया हुआ है, 10 किलो। टाइम डिले आपको कितना दिया हुआ है, 10 मिलीसेकेंड। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो बहुत इजी है, टाइम डिले आपको दिया हुआ है, टी की वैल्यू, क्योंकि टी पहले ही बताया टाइम डिले एक्चुअल में क्या है, टी। तो टी की वैल्यू आपको कितना दिया है, 10 मिलीसेकेंड्स। आर की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 10 किलो ओम, और सी की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो कोई भी पैरामीटर आपको निकालना हो निकाल सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट